إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عباسمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالی جتنے لوگ ہم مسجد میں حاضر ہیں، ہماری جو مرادیں ہیں، خواہشیں ہیں، اللہ تعالی سب کو قبول فرمائے. اللہ سب کو صحت و عافیت، امن و اطمینان عطا فرمائے. اللہ سب کو اپنے خزانوں سے عطا فرمائے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. اللہ کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے، یہ نہ کہے کہ دعوت فلم یستجب لی، میں نے بہت دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی. جب تک وہ ایسا نہیں کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر، اہل بیت پر، تبع تابعین پر اور قیامت تک اس سچے دین پر عمل کرنے والوں پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتیں ہوں. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، سورہ بقرہ کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. آیت نمبر 190، اسی طرح 193، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں لڑو ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے لڑائی کی. فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے آگے نہ بڑھو. جیسے انہوں نے تمہارا لاس کیا ہے، نقصان کیا ہے، اتنا تم کر سکتے ہو لیکن حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو. اور ایک آیت اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تمہاری یہ لڑائی اس لیے ہو کہ فتنہ ختم ہو جائے. اس لیے نہیں کہ تم اپنی برتری ظاہر کرو، کسی کی زمین ہتھیا لو، کسی کا مال قبضہ کر لو یا کسی کی جان و مال کا نقصان کرو، اس کے لیے نہیں. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، فتنہ مٹانے کے لیے تم لڑائی کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے مکے میں کئی سال جبر و ظلم اور استبداد کے سہنے کے بعد، صحابہ کرام کو آگ کی چتاؤں پر لٹائے جانے کے بعد اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے بعد مدینہ آنے کے جب اسلامی سلطنت بن گئی تو اللہ نے اجازت دی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کو جنگ کی اجازت دی گئی اس لیے کہ وہ ظلم کیے گئے. تو اسلام مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دیتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی. خواہ کسی پر جبر و ظلم کی اجازت نہیں دیتا. آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفیر ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر جاتے ہیں تو وہ بادشاہ پوچھتا ہے کہ تم لوگ کیوں نکلے ہو مدینے سے، چہار طرف تم یہ دعوت دین لے کر کیوں نکلے ہو، تمہارا کیا مقصد ہے؟
तो उन्होंने यही जवाब दिया, वहुवा बअसना, अल्लाह ताला ने हमको भेजा है, लिनुखरिज मन शाअ मिन इबादी मिन ज़ीक़ि दुनिया इला सिअतिहा। अल्लाह ताला ने हमको भेजा है, अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है कि हम अल्लाह के बंदों को, दुनिया के वो लोग जो उन पर जबर जुल्म करते हैं, उनके जुल्म से नजात दें। यह हमारा मकसद है। बहैसियत मुसलमान हमारा यह मकसद है। वमिन जौरिल अदियान इला अदालतिल इस्लाम, और दूसरे जो दीनों का जौर और जुल्म है उससे निकाल कर हम उन्हें मुसलमान बनाएं, मुसलमानों का अदल इंसाफ उनको बतलाएं। दोस्तों अजीजों, आज की इस जुमे के खुतबे में मेरी आपके सामने यही गुफ्तगू थी कि हमारे पास इस्लाम के क्या अखलाक हैं जो उस वक्त हमें इख्तियार करने पड़ते हैं जब अल्लाह आपको हाकिम बना दे, किसी कौम से आपकी लड़ाई हो जाए, किसी कौम, आज तो जमाना इतना खराब है, पहले ऐसा होता था दो आदमी आपस में लड़ जाते थे तो तीसरा आदमी कोशिश करता था कि दोनों में मुसालहत करा दे, दोनों में लड़ाई बंद करवा दे। तो आज लोगों के मुख्तलिफ अंदाज है। कोई कहता है अरे लड़ने दो बा, ये सरदर्द हमको नहीं चाहिए, किनारा कशी इख्तियार कर लेता है। कोई क्या करता है, अरे दोनों भी खराब हैं। दोनों कैसे खराब हो सकते हैं? एक तो जालिम हो सकता है, ये तो मजलूम हो सकता है। ये आपका फैसला गलत है कि दोनों गलत हैं? दोनों गलत हैं तो ये रवैया भी गलत है। आपका तो ये उसूल होना चाहिए, अरे क्या भाई कब देखे तो लड़ते रहते ना भाई, अरे आप अच्छे हैं, वो लड़ी करने वाले हैं, आप जाएं पूछें कि भाई लड़ाई क्यों होती है, क्या सबब है, क्या रीजन है। आप मजलूम का साथ दें, जालिम का हाथ पकड़ें, आप दूर खड़े तमाशा देखते रहें, खुश होते रहे, अच्छा लड़ी होती। तो कोई और भी ऐसे अजीब अजीब लोग हैं, अजीब अजीब इनके अंदाज हैं, अजीब अजीब रवैये हैं। और एक दोनों लड़ते हैं तो पहले जमाने में तीसरा छुड़ाता था, आज तीसरा वीडियो पकड़ता है। नहीं, आज तो ऐसे नहीं होता है, तीसरा खड़े होकर वीडियो पकड़ता है कैसे लड़ाई हो रही है। तो अब इस जमाने को आप क्या बोलेंगे? इस जमाने का अंदाज, लोगों का रवैया कैसे होगा, कैसे किस किस्म के लोग होंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि क़यामत के करीब जब वो हवा चलेगी और मोमिन सारे के सारे मर जाएंगे तो ऐसे बदतरीन किस्म के लोग रह जाएंगे, खिफ़्फ़त अत-तैर, इनकी अकलें परिंदों की अकल से भी कम होगी। ये ना नफा पहुंचानेंगे ना नुकसान पहचानेंगे, कोई चीज की पहचान इनको नहीं होगी। दोस्तों अजीजों, कुछ बातें मेरे सामने आज के इस जुमे के खुतबे में हैं, इसे गौर से सुने। दरअसल जितने हम मुसलमान हैं, दुनिया के किसी कोने में किसी मुसलमान को तकलीफ होती है तो इस्लाम का यह तकादा है कि वो कांटा उसके पांव में नहीं, आपके दिल में चुभे। आप भी महसूस करें कि वो मासूम बच्चे जो गुज़िश्ता महीना 7 तारीख से अब तक जो कत्ल और जोर और जुल्म का निशाना बन रहे हैं, वो गजा की सरजमीन हो या फलस्तीन की सरजमीन हो या वहां के वो लोग हों, वो भी कलिमा गो मुसलमान हैं। हम इससे हटकर कि क्या वहां के सियासी हालात हैं, क्या चीजें हैं, ये तो हम नहीं जानते, हम तो कोसों में दूर हैं, लेकिन इस्लामी रिश्ते उखुवत की बिना पर हम उनसे करीब हैं। हम वो दुख दर्द अपने दिल में महसूस करते हैं, हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। न उन माओं का बिलकना, न उन माओं की गिरिया उजारी, न वो बच्चों का तड़पना, वो भूखे ज़ईफ मुअम्मर लोगों का दुख दर्द सहना, ये किसी मुसलमान से बर्दाश्त नहीं होता है। हम लोग अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन सब की गैबी मदद फरमाए, उन सब की गैबी मदद फरमाए। और ये जंगी ऐसे हालात होते हैं जिसमें जल्दबाजी भी काम नहीं देती। कितने लोग हैं जो कभी इस्लामी सल्तनतों को गाली देते हैं, अरे क्या कर रहे हैं, उनको चोड़ियां पहना दो, उनको बंगड़ियां पहना दो। अरे कोई मामूली बात नहीं है, उसके तकादे होते हैं। वहां सारे यूरोपियन ममालिक के बेड़े हैं, बहरी बेड़े हैं, वो ये तो खामोश नहीं बैठेंगे। कोई अगर मुस्लिम ममालिक आगे भी बढ़ते हैं तो वहां से बम गिरेंगे और फिर नागासाकी का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। वही बम बिलाद अरबिया पर भी गिरेंगे। ये हैं किसी पर रहम करने वाले नहीं,
बहरकैफ ये अलग कावानीन हैं, इनके अलग तकादे हैं, लेकिन बहैसियत मुसलमान हमें अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआएं करनी है, अल्लाह ताला उनका गैबी मददगार बन जाए। चलिए देखते हैं, एक तरफ हमने उनके जुल्म और सितम का निशाना बनते बच्चों को देखा, औरतों को देखा जिनका पानी बंद कर दिया गया और जिनका खाना बंद कर दिया गया, और मैंने कभी ऐसे भी देखा 2 रोटी यहां छुपाए हुए हैं। कभी घर में आपके अगर कोई आपको सालन अच्छा ना लगे तो कभी उन बच्चों को याद करने, बस एक सूखी रोटी यहां छुपाया हुआ है। बोला वहां एक बेकरी थी जिसको मिस्मार कर दिया गया, बेकरी बताकर उसने कहा कि यही वो बेकरी है जिससे कल मैंने रोटी खरीदी थी। आज उस बेकरी को भी जमीन बोस कर दिया गया। ये वो बच्चे हैं जो हमारी तरह कलिमा गो बच्चे हैं, कलिमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, रिसालत पर यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन रखते हैं, और ये जुल्म और बर्बरियत का निशाना बने। चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास जंगी उसूल क्या बताते हैं, नबी की क्या तालीमात हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस में फरमाते हैं, कत्ल उन्हीं को किया जाएगा जो कत्ल लड़ने वाला हो, जो लोगों से लड़ता हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है मन अलक़स्सिलाह फहुव आमिन, जो हथियार फेंक दे उसे हम कत्ल नहीं करेंगे। अस्पतालों में बच्चों को कत्ल करें, अस्पतालों में ऑक्सीजन बंद कर दें, ये इल्जाम लगाएं कि यहां हथियार छुपा है। आज कौन सी मुश्किल बात है, आप 2 हथियार डाल दें और फोटो निकाल दें। आज के जमाने में कोई मुश्किल बात है? आज तो हर तरह चीज होती है। आज लोगों की तस्वीरें बदल दी जा रही हैं। अभी 4 दिन से आपने मीडिया में देखा होगा कैसे लोगों की तस्वीरें और उनके ताल्लुक से बदल दी जा रही। तस्वीर किसी की है, कोई एक्शन कर रहा है। बोला कि ये दुनिया है जहां अस्पताल के अंदर हथियार रख दिए गए, बताया कि यह अस्पताल था जो दहशतगर्दों का ठिकाना था। अल्लाह ताला बेहतर जानता है, हम तो यकीन करने वाले नहीं हैं। तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अलक़स्सिलाह फहुव आमिन, जो हथियार फेंक दे वो अमन में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। वमन अग़लक़ बाबह फहुव आमिन, जो दरवाजा बंद कर दे वो भी अमन में है। ला तक़्तुलू दुर्रिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं देखो बच्चों को कत्ल न करो। सुभान अल्लाह, यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। कहते हैं देखो बच्चों को कत्ल न करो, इसलिए कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। कितने बच्चे जब से हमलों का आगाज हुआ लुक़्मा अजल बन गए, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं ला तक़्तुलू दुर्रिया, इन्हीं बच्चों को कत्ल न करो। इमाम मालिक रहमहुल्लाह और इसी तरह इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह फरमाते हैं इला अदमी मुक़ातलतिल अमा, अंधे और नाबीना को कत्ल नहीं किया जाएगा जंग की हालत में। वल मुक़इद, इसी तरह वो आदमी जो खोसट बूढ़ा है, बैठ गया, कहीं जा नहीं सकता, उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। अल हुर्रास वज़्ज़ुर्रा, इसी तरह खेती बाड़ी करने वाले, फार्मिंग करने वाले, उनको कत्ल नहीं किया जाएगा। अल मातूह, किसी तरह कोई पागल आदमी है, बीमार आदमी है, उसे जंग में कत्ल नहीं किया जाएगा। अस्हाबुस सवामिअ वश्शुयूखुल कबीर, इसी तरह जो लोग मंदिरों में या कलेसाओं में, गिरजाघरों में बैठे हुए हैं, उनको हरगिज कत्ल नहीं किया जाएगा, या बिल्कुल बूढ़े लोगों को कत्ल नहीं किया जाएगा। राहिब और इसी तरह औरत को कत्ल नहीं किया जाएगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से निकलने वाली तालीमात है। इसी तरह यह भी बताया किसी को मुसला न करो। जंगों में पहला ऐसा होता था, किसी कैदी को कत्ल कर देते तो उसका सीना चीर देते थे, कान काट देते थे, नाक काट देते थे। जैसे आपने जंगे बदर के मौके पर हिंदा के बारे में सुना, उस रिवायत के बारे में इतना तो था कि चीरा था, लेकिन चबाया था कि नहीं चबाया था उसमें थोड़ा इख्तलाफ है। लेकिन मुसला जिसे कहा जाता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मना किया। सही मुस्लिम की हदीस है, कहा वला तक़्तुलू वलीदा, किसी बच्चे को कत्ल न करो, किसी छोटे बच्चे को कत्ल न करो। इसीलिए अब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यजीद इब्न सुफियान को जब शाम भेज रहे हैं जंग के लिए, वसीयत कर रहे हैं ला तक़्तुलू कबीरन, किसी बड़े आदमी को कत्ल न करो, वला तक़्तुलू इमराअतन वला वलीदन वला, और इसी तरह किसी आबादी को
मिस्मार न करो, जहां लोग आबाद हैं उसे वीरान न करो। आज आप देख रहे हैं कि कैसी कैसी बस्तियां, कैसे सीमेंट का ढेर बन चुकी हैं, कैसी बड़ी बड़ी इमारतें सिर्फ पत्थरों का अंबार बन चुकी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, वला तक़रबू इमरानन, किसी आबादी को वीरानी में तब्दील न करो। और यहां तक कहा किसी दरख्त को मत काटो मगर नफा देने वाला हो, और नफा देने वाला ना कोई, किसी दरख्त को बिला सबब न काटो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। यहां तक कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बहुत सारे लोग कैद होते थे, कैदियों के साथ बहुत बुरा सुलूक आज के जमाने में होता है, जिनको हम समझते हैं कि ये बहुत तहजीब याफ्ता कौमें हैं, बहुत एडवांस हैं, उनके पास बहुत मुहज्जब चीजें हैं, ऐसे सिविलाइजेशन, यानी बिल्कुल ऐसी इनकी तहजीब है जो मिसाल दी जाती है। यूरोप में, अमेरिका में इतने अच्छे तहजीब याफ्ता लोग हैं, इन्हीं ने होते वो जेल बनाए गोंतामो में, और इसी तरह अबू गरीब, ऐसे बड़े बड़े जेल बनाए जहां कैदियों को सिगरेट के निशान लगाए जाते थे, नाजुक जगहों पर सिगरेट का निशान, कुत्ते उनके पीछे छोड़े जाते थे, नंगा करके सर्दियों में ठंडा पानी उन पर बहाया जाता था। ये उनके कैदी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैदी को देखिए, जब भी कोई कैदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता, किसी मुसलमान सहाबी के हवाले करते और करके कहते अल्फाज हैं, अहसिन इलै, इस कैदी के साथ अच्छा सलूक करो। वार प्रिजनर्स जो होते हैं, जंगी कैदी, उनके उसूल हैं, लेकिन ये इस्लामी उसूल हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के कैदियों के बारे में, जिनकी रस्सियां मजबूती से बांध दी गई थी, ठंड में उनको रखा गया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आहें सुनी, परेशान हो गए, बोला कि उनकी रस्सियां ढीले कर दो। ये रहमतुल लिल आलमीन है सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। दोस्तों अजीजों, ऐसे नबी के हम उम्मती हैं जो जंगी कैदियों के साथ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह रवैया है। और ये लोग जो आज उन मुसलमानों पर जुल्म और सितम कर रहे हैं, अगर आप जरा पीछे चले जाएं 836 साल पहले, 836 ईयर्स पहले अगर आप चले जाएं, तो उसी सरजमीन पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दिस को जब फतह किया था, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1180 पर 7, आज तो 2023 है, उसे आप माइनस कर लें, कहा कि 836 साल पहले जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मक़दिस को फतह किया था, उन्होंने हुक्म दिया था अस्सदक़ातु अलल फुक़रा, वहां के जो फकीर हैं उन पर सदका किया जाए। अब ये नहीं देखा कि वहां फकीर क्रिश्चियन है, कहा कि उन पर खैरात किया जाए। वल अरामिल वल मरदा, बेवा औरतों पर सदका किया जाए और बीमार लोगों पर सदका किया जाए। मिनस सलीबियीन, ये सारे के सारे क्रिश्चियन थे, बीमार, बेवा और गरीब जो भी थे, फकीर, वो क्रिश्चियन थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन पर खैरात करने का हुक्म दिया, खर्च करने का हुक्म दिया। वकज़ालिकल यतामा, और यतीमों पर खर्च करने का हुक्म दिया, और अपनी तरफ से कई कैदियों को आजाद किया। तो लिखते हैं अल मुलक़्क़ब बिल मलिकिल आदिल, उनके जो भाई थे उन्होंने 70,000 कैदियों को आजाद किया। सुल्तान सलाहुद्दीन के सिर्फ भाई ने 70,000 कैदियों को आजाद किया। दोस्तों अजीजों, ये हमारा ज़र्फ है, ये हमारी आदतें हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया है। हम किसी की मौत पर खुश नहीं होते, किसी की तकलीफ पर खुश नहीं होते। हमने देखा इस मुल्क में भी हालिया दिनों में कई लोगों की वीडियोस हमने देखी जो मुसलमान नहीं हैं, खुश हो रहे, बच्चों की बिलकती हुई मौत पर खुश हो रहे, और ये अपने आप को कहते हैं हम बड़े पारसा हैं, कहा हम बड़े बुजुर्ग हैं, हम बड़े अल्लाह, वो उनकी खुदा की जो भी वो लोग करते हैं। क्या कोई खुदा अपने मानने वालों को इस तरह की दरिंदगी का हुक्म देता है? हरगिज हुक्म नहीं देता। अगर सारी किताबें हक पर हैं तो अल्लाह ताला जैसे हुक्म देता है, और अल्लाह ताला है जो सिर्फ
रहीम है, रऊफ है, रहमान है, जो बंदों को ये दर्स सिखाता है कि वो रहम करे। यहां तक कि नबी ने जानवरों पर भी रहम किया, कहा कि ज़बह करने से पहले अपनी छुरी अच्छी तरह तेज कर लो ताकि जानवर को तकलीफ ना हो। दोस्तों अजीजों, इसीलिए कहते हैं व इन जनहू लिस्सिल्म फजनह लहा व तवक्कल अला अल्लाह इन्नहु हुवस समीउल अलीम, सूरतुल अनफाल आया नंबर 61, जिसमें कहा कि अगर वो मुसालहत पर आ जाएं, तुम्हारा दुश्मन ये समझ ले कि मैं अब मुसालहत करना चाहता हूं, फजनह लहा, तुम भी उसके साथ मुसालहत कर लो, खामखा लड़ाई को आगे मत बढ़ाओ। सारी दुनिया चीख रही है, सारी जगह एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। इसलिए तैयार नहीं है कि वो कौम ही ऐसी है जो अपने अलावा किसी को इंसान नहीं समझती है ना। वो कौम ही ऐसी है, वहुम क़तलतुल अंबिया, अंबिया के कातिल हैं, और जिन्होंने अंबिया के साथ जुल्म जौर किया है, वो कौम ऐसी है जो अल्लाह ताला की मलऊन कौम है। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि लड़ाई के बाद अगर कोई मुसालहत करना चाहे तो आप मुसालहत कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इसमें है, वल्लाही वल्लाही ला तदऊनी कुरैशुन इला खुत्ता, अगर कुरैश ये चाहते हैं कि मैं उनके साथ मिलकर कोई ऐसा प्रोग्राम बनाऊं, कोई ऐसी चीज बनाऊं जिससे हम रिश्तेदारी का ख्याल करें और एक दूसरे के खूनों का, जानों का एहतराम करें, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं कुरैश से लड़ना नहीं चाहता, और कुरैश चाहती हैं कि मैं उनके साथ अच्छा करूं और उनके इस पर हमला ना करूं और उनकी जारों की हिफाजत करूं, तो मैं उसके लिए तैयार। तो दोस्तों अजीजों, आप समझते हैं कि इस्लाम में बहुत सारी जंगें हुई। बहुत सारे लोग कहते हैं इस्लाम ने कितना जुल्म किया, कितने लोगों का खून बहाया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्से नफीस जिसमें हिस्सा लिया है, जिसमें कहते हैं कि कुछ सरियात हैं, कुछ गज़वात हैं, तो 27 जो जंगें हुई और बहुत सारे सरियात हुए, इसमें मुफस्सिरीन ने, पूरे सीरत निगारों ने कहा कि 1000 आदमी लगभग मारे गए। उतना ही, कितने? 1000 आदमी, उससे ज्यादा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी कत्ल और गारतगिरी का हुक्म नहीं दिया। आपने सुना होगा, हदीसें आती हैं, उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक आदमी को कत्ल कर दिया, जो कत्ल होते हुए उसने कलिमा पढ़ा, फिर भी उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको कत्ल कर दिया। बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, उसामा तुमने कलिमा पढ़ने के बावजूद भी उसे कत्ल किया, हशर के दिन क्या करोगे जब वो कलिमा लाएगा, कैसे तुम जवाब दोगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार दोहराते रहे। दोस्तों अजीजों, ये इस्लामी तारीख है, 27 जंगें और ये सरियात, 56 सरिये, जिसमें सिर्फ 1000 लोग ऐसे हैं जो मारे गए। हम आपको बताएं, इसके बरखिलाफ आप बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े दानिश्वर हैं, बड़े बड़े आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप वर्ल्ड वार की तारीख जानते हैं, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार की तारीख जानते हैं कि उन जंगों में कितने लोग मारे गए। आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, कितने लोग मारे गए। कहा कि अल हुरूब अल आलमिया हस्सानिया, सेकंड वर्ल्ड वार, कहा कि 60 मिलियन लोग जो चले गए। अल हुरूब अल आलमिया अल ऊला 14 मिलियन, कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में 14 मिलियन। ये सब इंसान थे, ये सब इंसान थे जो कत्ल किए गए और जिनकी खून की होली खेली गई, और इंसान है। लेकिन एक तरफ इस्लाम, लेकिन बदनाम तो इस्लाम ही को करते हैं, इसलिए कि सारी दुनिया वाले सारे के सारे ये कुफ्र का शेवा है कि ये हमेशा मुसलमानों के साथ डबल पॉलिसी अपनाते हैं, दोहरा मेयार अपनाते हैं। यूक्रेन के लिए एक पॉलिसी और बैतुल मक़दिस के लिए एक पॉलिसी, वहां के लोगों के लिए एक इंसाफ और यहां के गज्जा के लिए अलग इंसाफ। ये सारे लोग और अपने आप को समझते हैं बड़े मुहज्जब हैं, हम बड़े बड़े आदमी हैं, हम बस इंसाफ चाहते हैं। ये कैसा इंसाफ है, हमारी अकल समझने से कासिर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जंग के मौके पर जा रहे थे तो देखा कि एक औरत की लाश पड़ी हुई है।
یہ खातून की लाश पड़ी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा कानत हादिही तुकातिल, अरे यह औरत तो लड़ने वालों में से नहीं थी, इसे किसने मारा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहम आपने देखा। कितने बच्चे तड़प रहे, खवातीन तड़प रही और कितने लोग मारे गए हैं, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। बस अब अंदाजा कीजिए कि इस्लाम की तालीमात कैसे हैं, ये दरिंदे जालिमों का रवैया कैसे है। खालिद बिन वलीद जर्नेल थे, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, उनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तक़्तुलन्ना इमराअतन वला असीफन, कहते हैं कि देखो किसी औरत को कत्ल ना करो। फौज पर जर्नेल को भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी औरत को कत्ल ना करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी बीवी को, नौकर को हाथ से नहीं मारा, यानी कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ नहीं उठाया। इसीलिए वो से सारे लोग जो मामूली मामूली बात पर अपनी बीवियों पर हाथ उठाते हैं, अच्छे समझे नहीं जाते हैं। अगर वो नबी के सही उम्मती हैं, कोशिश करें कि कमजोर मखलूक पर बार बार जोर और जुल्म नहीं किया जाता। ला तक़्तुलू शैखन नहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन क़त्ल निसाई वस्सिबियान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के कत्ल से मना किया, बच्चों के कत्ल से मना किया। ला तक़्तुलू शैखन फानियन, किसी बुजुर्ग आदमी को कत्ल न करो। वला तिफ़लन सगीरन, किसी छोटे बच्चे को कत्ल न करो। और वास्लिहू वाहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, नेकी करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों को कबूल करता है। तो इसीलिए कहते हैं जिन जिन लोगों को कत्ल करने की, न कत्ल करने की बात कही गई, उसके ताल्लुक से कहा कि अगर वो जासूसी करते हैं, दूसरा काम करते हैं, कोई औरत है, औरत को कत्ल करना मना है, लेकिन कोई औरत जासूसी करती है तो फिर उसका हुक्म अलग है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक हुक्म दिया कि देखो गफलत में किसी को कत्ल न करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कौम के पास जाते तो सुबह होने का इंतजार करते, रात में कभी किसी पर हमला नहीं करते, रात में किसी पर हमला नहीं करते। आपने इस जंग में देखा कि रात दिन नजर आने लगी, हजारों की तादाद में रात में बम बरसने लगे। रातों रात जैसे बिजली हो या कमकमे हो, बत्तियां जल रही हों, इतने कमजोर लोगों पर बम की बारिश होने लगी। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये धोखा है, रात आराम करने का वक्त है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह का इंतजार करते, जैसे हदीस में बताया गया कान इज़ा जा कौमन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी कौम पर आते तो सुबह का इंतजार करते, फिर उसके बाद उनको सुबह की रोशनी में उन पर हमला करते। इसी तरह एक और चीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को आग में जलाने से मना फरमाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक मर्तबा की बात है, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना था जिसमें खवारिज पहली मर्तबा निकले। खवारिज एक टीम थी चंद लोगों की, उनके पास बहुत सारे अपने अकायद थे, सहाबा किराम से दुश्मनियां थी। जैसे आजकल वो लोग हैं जो उलमा को गालियां देते हैं, एक टीम है, यही वो खवारिज के चट्टे बट्टे हैं जो उलमा को गालियां देते हैं। अरे ये उलमा नहीं रहेंगे तो तुम्हारा जनाजा कौन पढ़ाएगा? उलमा की कदर करो, उलमा से दुआएं लो, उलमा से दीन सीखो, उलमा का अदब व लिहाज करो। और वो जमाने में वो लोग थे जिन्होंने सहाबा की कत्ल के दर पे हुए, हजरत अली को कत्ल करने की साजिश की, और फिर वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करने की साजिश की, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करने की साजिश की। किसी के कत्ल में कामयाब हुए, किसी की शहादत में, किसी को अल्लाह ताला ने बचा लिया। दोस्तों अजीजों, उस वक्त कुछ लोग ऐसे जिंदीक भी थे जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खुदा मानते थे, रब मानते थे, बोलते थे कि अली खुदा है। ज़नादिक़ा, जिंदीक उसका जमा है। तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक नौकर थे, खादिम थे, कुंबुल, तो उनसे कहते थे ऐसा करो इनको आग में जला दो, बड़े बड़े गड्ढे खोद कर इनको आग में डाल दो। और वो लोग कहते देखा हमने आपको रब माना और जलाता तो रब ही है, आप रब हैं, तौबा करने के बजाय और पुख्ता हो जाते।
तो ये बात जब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुई तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, ला तुअज़्ज़िबू बिअज़ाबिल्लाह, आग में जलाने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है। वैसे तुम किसी को सजा मत दो। किसी को सजा देना है कत्ल कर सकते हैं अगर वो कत्ल का मुस्तहिक है, लेकिन आग में जलाने का हक सिर्फ अल्लाह ताला को है। अल्लाह ताला को हक है। ये जंगी उसूल हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो सुना वो बताया। और इसी तरह हाथ बांध करके कत्ल करना, हाथ पैर बांध करके कत्ल करना, यह भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। इसीलिए कहते हैं समिअतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बांध करके किसी को कत्ल करने से मना फरमाया है। इसी तरह बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं अल्लाह ताला की इस आयत की रोशनी में, व इज़ा तवल्ला सआ फिल अर्दि लियुफ्सिद फीहा व युहलिकल हर्सा वन नस्ल वल फसाद वल्लाह, यानी वो लोग जब जमीन में हाकिम बन जाते हैं, जमीन में फरमारवा बन जाते हैं, तो ये जमीन में फसाद मचाते हैं। अल्लाह ताला जमीन में किसी को ताकत दे, जमीन में किसी को बड़ाई दे, आपको कभी अल्लाह ताला फरमा रवाई दे, चाहे किसी घर की सियादत हो, घर की सरदारी हो, महल्ले की सरदारी हो, किसी जगह की सरदारी हो, तो आप कोशिश ये करें कि आपकी वजह से वहां फसाद ना हो, आप मुबारक बन जाएं। वइज़ा तवल्ला सआ फिल अर्द लियुफ्सिद फीहा, लेकिन कुछ जालिम ऐसे होते हैं जब बड़े हो जाते हैं तो वहां फसाद मचाते हैं। वयुहलिकल हर्स वन नस्ल, खेती बाड़ी को नस्ल कशी करते हैं, वहां की नस्लों को खत्म कर देते हैं, वहां के बच्चों को कत्ल कर देते हैं। बिल्कुल ये कुरान मजीद की आयत है। और आखिर में कहा वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं करता है। बहुत सारी बातें हमारे पास हैं, लेकिन आखिर में मैं जैसे मैंने आपको कहा है उसी का खुलासा बताकर आपको मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि ये जुल्म है जो मुसलमानों के साथ रवा रखा गया है। जो आपने देखा सारी बात का खुलासा है। इस्लाम की जंगी अखलाक ये बताती हैं कि औरतें, बच्चे, बूढ़े कत्ल नहीं किए जाएंगे। सारी बात का खुलासा ही हमारी समझ में आता है। राहिबों और आबिदों को सताया नहीं जाएगा। कोई राहिब है, अल्लाह अल्लाह करने वाला है, भले वो दूसरे कौम का है, उसे तकलीफ नहीं दी जाएगी। और कोई फलदार दरख्त नहीं काटा जाएगा और आबादियां वीरान नहीं की जाएंगी। कहीं आबादी है उसे वीरान नहीं की जाएगी। जानवरों को हलाक नहीं किया जाएगा। और जैसे कहा गया कि किसी पर बेज़रर किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अजीजों, माँ और बहनों, ये चंद बातें थी जो इस्लामी अखलाक से मुताल्लिक थी, जो हालत जंग में पेश आती हैं। बहैसियत मुसलमान आप पर और मुझ पर जरूरी है कि हम एक अपने मजलूम मुसलमान भाइयों के लिए दुआएं करें। नंबर 2, जो अखलाक गैरों में हैं, जिन अखलाक से बचने का हमें हुक्म दिया गया है, उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करें। जरूर हम यहूदियों को बुरा भला कहते हैं इसलिए कि वो जुल्म और जोर रवा रखे हुए हैं, लेकिन उनके अखलाक अगर हमारे अंदर है तो ये भी अच्छी बात नहीं। उनके अखलाक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मरहले पर कहा है कि देखो, यहूदियों की रविश इख्तियार न करो, यहूदियों के पीछे न चलो। तमाम चीजों में कभी आप पढ़ भी सुनते भी होंगे कि हर चीज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। कपड़े पहनने में, इबादत करने में, रोजे रखने में, हज करने में, हर चीज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि देखो, खालिफुल यहूद, यहूदियों की मुखालफत करो, यहूदियों की इत्तिबा न करो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमको मुत्तबे सुन्नत बनाए, अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को उन मजलूम मुसलमानों के हक में कबूल फरमाए। ऐ इलाहुल आलमीन, जितने लोग यहाँ जमा हैं सब की दुआओं को मजलूम फलस्तीनियों के हक में कबूल फरमा। या अल्लाह, उनका तू मददगार और हामी बन जा। या अल्लाह, हम मुसलमानों को
اپنے اندر دینی بیداری پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کے وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہماری اس مجلس میں جو بھی قرض دار ہے اس کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ یا اللہ تیرے رحمت کے خزانوں سے ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے۔ یا اللہ جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، مجبور ہیں، بے کس ہیں، یا اللہ سب کو اپنے خزانوں سے عطا فرما۔ یا اللہ سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم الرؤوف الرحيم۔